یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 5ویں آیت سے نام ہے، اور اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ جب مر جاتا ہے تو لوگ بڑے پریشان ہیں، اور خداوند یشوع سے کہتے ہیں کہ دیکھ میرا بندہ موسیٰ جو مر گیا ہے، سو اب تو پھر لوگوں کے ساتھ جا کر ان کی رہنمائی کر، اور اس کے لیے شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو خداوند نے ہر موسیٰ کے بعد ایک یشوع رکھا ہوگا، تو ان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ خداوند اس سے جب کلام کرتے ہیں تو کنڈیشن کیا ہے؟ یہ جو آیات ہے، جب میری فلسفی گریجویشن ہوئی گجرات تھیولوجیکل سیمینری میں، تو جو بائبل مقدس مجھے دی گئی اس میں میرے استاد محترم نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکھا کہ یہ شریف کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، پورے دن اور رات اسی کا دھیان رکھا۔ ڈاکٹر آرتھر جیمس صاحب نے اس کو میرے لیے جو ہے نا لکھ کے دیا مجھے، اور وہ جو بائبل ہے مجھے آرڈینیشن میں دی گئی، تو میں خدا کو شکر کرتا ہوں۔ تو سنیے خدا ان کا زندہ معتبر لاپتہ لا تبدیل پاک لا، یہ لکھا ہے 5ویں آیت میں، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم کے باپ داد سے کھائی۔ تو وقت مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر ساری چیزیں پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دانے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ مہربان زندہ پاک خدا، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک سانس کے لیے، اور پیارے خداوند آپ کے خادم کے لیے، پاسٹر سیلاد صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں اپنے خادم کو بڑے پیارے خداوند خوبصورت طریقے سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، اور جو بھی شبد جو بھی الفاظ ان کے منہ سے نکلیں وہ ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ Heavenly Father, loving God, we come to you. We give you praise and honor because you are worthy of all the praise and honor. We are seeking your anointing. We are seeking your guidance. Please lead us, guide us, empower us by the power of the Holy Spirit. Bless your servant. In Jesus' name we ask this. Amen. Amen. جی پاسٹر جی، اوور ٹو یو، جو بھی خدا نے آپ کو کلامت دیا ہے آپ اس کو ہمارے ساتھ بات۔ آمین، ہاللویہ۔ خدا ان کے عظیم و جلالی نام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میرا سلام۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ایک بار پھر اس اپرچونٹی کے لیے جو خدا نے ہمیں دی ہے، اس کے کلام کو لے کر ہم آپ کے سامنے آ سکیں۔ اور آپ تمام لوگ جو دنیا بھر سے ہمیں واچ کر رہے ہیں، آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے 5 privileges of God's word، 5 اعزازات یا 5 فائدے خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے۔ اور آئیے اس کے لیے جو فرسٹ ورس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، it is taken from Hebrews chapter 4 verses 2، عبرانیوں کا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی دوسری آیت، صرف ایک ہی آیت کو ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم ان 5 privileges کو دیکھیں گے، اور پھر ہم 3 conditions کو یا requirements کو دیکھیں گے جس کے ذریعے سے آپ اور میں خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں بینیفٹ کے طور پر ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے عبرانیوں کے خط Hebrews chapter 4 verses 2، اس میں لکھا ہے کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔ میں دوبارہ پڑھوں گا، خاص طور پر اس حصے کو جہاں پر یہ لکھا ہے پر سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا۔ ان ادر ورڈ، خدا ان کا کلام جو ہے وہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہے، پریولیج کے لیے ہے۔ اور انگلش کی ایک ٹرانسلیشن میں لکھا ہے but the message they heard did not benefit them because it was not mixed with faith۔ ایک اور ٹرانسلیشن میں لکھا ہے
the word of God that we proclaim or preach, it did not bring privilege to them. In other words, the word of God, whenever the word of God comes, it brings the privilege. One of the privilege जो बाइबल मुकद्दस में है वो है Psalm 107 में, और उसकी 20वीं आयत में लिखा है खुदावंद के कलाम में कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाता और उन्हें शिफा बख्शता है. If you need healing, you need God's word. ये पहला privilege जो मैं आपको देना चाहता हूं. मैं आपको बहुत से privileges खुदा के कलाम से दे सकता हूं, लेकिन टाइम की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ 5 privileges पर गौर करेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से. तो फर्स्ट privilege 107, Psalm 107 और उसकी 20 वर्स में वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उन्हें शिफा देता है. अगर आप गौर करें तो पौलुस रसूल जिसने इब्रानियों के को मुसन्निफ है, उसने जब ये लिखा तो उसने कहा एक कंपैरिजन उसने दिया. कुछ लोग हैं जिनको उसका फायदा हुआ, यानी खुदा के कलाम का, और कुछ लोग हैं जिनको उसका फायदा ना हुआ. देखिए खुदा के कलाम में लिखा है पर सुने हुए कलाम ने उनको कुछ फायदा ना दिया. इन अदर वर्ड, कुछ लोग हैं, पौलुस रसूल कह रहे हैं, उसमें मैं खुद भी शामिल हूं, कि खुदा के कलाम ने हमें फायदा दिया, वो हमारे लिए फायदामंद हुआ, वो हमारे लिए प्रिविलेज लेकर आया, और बल्कि मैं ये कहूंगा प्रिविलेजेस लेकर आया. लेकिन फिर उसके बाद पॉल बड़ी डिस्करेजमेंट के साथ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ उन लोगों के ताल्लुक से बयान करते हैं जिन लोगों की जिंदगी में खुदा का कलाम फायदामंद नहीं हुआ. और आज भी बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगियों में खुदा का कलाम फायदामंद नहीं होता. और मैं 3 कंडीशंस अभी जल्दी से आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, जिसकी वजह से आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में प्रिविलेज के तौर पर देखेंगे और आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम प्रिविलेजेस लेकर आता चला जाएगा. तो जो पहला प्रिविलेज अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है वो है, इसकी वजह से हमारी जिंदगी की शिफा जारी होती है. अगर आपकी जिंदगी में बीमारी है, कमजोरी है, जाएं खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लें, ज्यादा से ज्यादा इसको अपनी जिंदगी में ले और आप एक्सपीरियंस करेंगे खुदा की शिफा को. नंबर 2, सेकंड प्रिविलेज जो बाइबल मुकद्दस में है वो यूहन्ना की अंजील और उसके 14वें बाब की 6ठी आयत में है. लिखा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं. मेरी बहन और भाइयों, जब मैं खुदा के कलाम की बात कर रहा हूं तो मैं एक्चुअली खुदा की बात कर रहा हूं, क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में क्या लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था. तो इन अदर वर्ड, जब आप खुदा के कलाम को सुनते, आप खुदा को सुनते हैं. जब खुदा का वचन आप तक पहुंचता है, खुदा आप तक पहुंचता है. इसलिए यह निहायत जरूरी है कि जब आप खुदा के घर में जाते हैं, बहुत फोकस्ड रहें खुदा के कलाम को सुनने पर. वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं हमेशा ये कहता हूं 3 वजह हैं खुदा के घर में जाने की. नंबर 1, पहली वजह कि हम वहां पर फेलोशिप के लिए जाते हैं, मुकद्दसीन की रिफाकत वहां पर होती है, कम्युनियन ऑफ द फेलोशिप, जो रिफाकत के लिए हम जाते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं. नंबर 2, हम खुदा की प्रस्तिश के लिए जाते हैं. उसने हमें बुलाया है, उसने हमें चुना है कि हम उसकी प्रस्तिश करें. और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो कलाम में लिखा है कि वो अपने परस्तारों की हमदो सना पर तख्त नशीन होता है. जब खुदा आ जाता है और हम वर्शिप करना बंद कर देते हैं तो फिर खुदा को मौका मिलता है कि वो अपना मुंह खोले और वो अपना मुंह खोलकर हमारी जरूरतों को पूरा करे. वो ये जानता है कि हम किस किस रीजन के साथ, कंसर्न के साथ उसकी हजूरी में हैं, और इस वजह से खुदा अपने कलाम को नाजिल करता है. ज़बूर 138 में लिखा है कि उस खुदा वो अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत देता है. इन अदर वर्ड, जो खुदा का कलाम है खुदा के लिए बहुत मोतबर है. तो इसीलिए खुदा के कलाम में यूहन्ना की अंजील और उसके 14वें बाब में लिखा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं. इन अदर वर्ड, खुदा का कलाम जिंदगी है. और जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, उसके शब्द, वचन के शब्द जब आपके अंदर जाते हैं तो वो जिंदगी लेकर जाते हैं. नंबर 2, सेकंड, जो थर्ड प्रिविलेज है वो है खुदा का कलाम बहाली लाता है. अगर आप खुदा के कलाम को देखें ज़बूर 19 में और उसकी 7वीं आयत में, तो वहां पर लिखा है खुदा का कलाम, खुदा की शरीयत बहाली लाती है.
ہے. اتنا وقت نہیں کہ میں سارے جو پیسیجز ہیں پڑھوں, پر میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں وچن کہ ان پیسیجز کو کہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور بعد میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. زبور 19 میں اور اس کے 7 میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام بحالی لاتا ہے. خدا کی مرضی ہوئی تو سنڈے کو میں شیئر کروں گا ٹوٹل ریسٹوریشن کے تعلق سے کہ کس طور سے خدا کا کلام بحالی لاتا ہے. اور میری بہنوں, میرے بھائیوں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, ڈپریشن میں ہیں, سٹریس میں ہیں, اور خدا کا کلام آپ کو ہر طرح کی سٹریس سے آزاد کرتا ہے. سٹریس فری ہونا چاہتے ہیں, ڈپریشن فری لیونگ گزارنا چاہتے ہیں, all you need is to get into the word of God, because the word of God will bring supernatural restoration in your life. تو خدا کا کلام جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں بحالی لے کر آتا ہے. زبور 23 میں لکھا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. ہاللویا. اگر آپ بحال ہونا چاہتے ہیں, دوبارہ سے اپنی زندگی کو تبدیل شدہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کی زندگی میں اس بات کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام اسٹیبلش ہو. او ہاللویا, خدا کا کلام اسٹیبلش ہو. اور پھر اس کے بعد نمبر 4 جو چوتھی فورتھ پریولیج ہے خدا کے کلام میں, وہ ہے خدا کا کلام ہماری کامیابی کی وجہ ہے. نو ابھی پیسٹر نوئل نے آپ کے سامنے یشوع کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت کو پڑھا. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اس کا دھیان رہے. 8ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے تو سب پر احتیاط کر کے عمل کر سکے, کیونکہ تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. ان ملکوں میں جہاں پر آج آپ دنیا میں ہیں, اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں, میں بھی سن رہا تھا پیسٹر نوئل ابھی شیئر کر رہے تھے, سعودی عربیہ سے, دبئی سے, یورپ سے, ڈنمارک سے اور مختلف ملکوں سے آپ نے جوائن کیا ہوا ہے. آپ تمام لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر اس لیے آئے ہیں کہ آپ کامیابی کو ایکسپیرینس کریں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خداوند آپ کے لیے کامیابی کی سیڑھی بن سکتا ہے اور اس کا کلام آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھول سکتا ہے. تو اس لیے نہایت ضروری ہے کہ جب آپ ان ملکوں میں ہیں, آپ اپنی لائف میں بہت بزی ہیں, انگیج ہیں مختلف باتوں میں, کاموں میں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ خدا کے کلام میں چلے جائیں, زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام میں وقت گزاریں, اور اس کی وجہ سے آپ کامیابی کو ایکسپیرینس کریں گے. اور لاسٹ پریولیج جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ زبور 19 میں ہی اور اس کی 8ویں آیت میں, خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں تازگی لاتا ہے, ریفریشنگ. اگر آپ مرجھا چکے ہیں, اگر آپ کمزور ہو چکے ہیں, تو آپ ریفریش ہونا چاہتے ہیں. ریفریشنگ آپ کی زندگیوں کے اندر, ریسٹوریشن میں اور ریفریشنگ میں فرق ہے. آوش کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں اس کے تعلق سے بات کر سکتا, لیکن میرا فوکس کچھ اور ہے ابھی بتانے کے لیے ریکوائرمنٹس کے طور پر, اس لیے میں صرف اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریفریشنگ, تازگی آپ کی زندگیوں میں صرف اور صرف خدا کے کلام کی وجہ سے. آپ تازہ دم ہونا چاہتے ہیں, جائیں. جب آپ بہت ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اپنے کام کی وجہ سے, تھک جاتے ہیں, جب آپ خدا کے کلام میں جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے, اس سے پہلے کہ ایون آپ دعا کریں, آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں, اور اس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں تازگی محسوس کریں گے. جلدی سے 3 ریکوائرمنٹس, اگر آپ ان پریولیجز کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں, 3 ریکوائرمنٹس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. جو فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے اسٹڈنگ گاڈز ورڈ, خدا کے کلام کو اسٹڈی کرنا. ریڈنگ میں اور اسٹڈنگ میں ڈفرنس ہے. اوکے, سو بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو صرف ریڈ کرتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ اسٹڈی گاڈز ورڈ. اوکے, اسٹڈی کرنا خدا کے کلام کو. جب موسیٰ نے, جب خدا نے یشوع کو کہا تو خدا نے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, یعنی ان ادر ورڈ تو نے اس کو پڑھنا ہے, بٹ دین اور جو کچھ اس میں لکھا ہے تو اس پر احتیاط کر کے عمل کر سکے. یہ ہے دھیان کرنا, اسٹڈی کرنا. جب آپ اسٹڈی کرتے, میں آلویز لوگوں سے کہتا ہوں جب آپ صبح اٹھتے ہیں اپنے کام پر جانے سے پہلے صرف ایک آیت کو پڑھ لیں اور پھر اس کو اسٹڈی کریں, سارا دن اس کو میڈیٹیٹ کریں, خدا سے کہیں خداوند اس کے اندر جو نگٹس ہیں, اس کے اندر جو ریولیشنز ہیں وہ مجھے دے. خداوند میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں, میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. اور یاد رکھیے جب آپ خدا کے کلام کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر خدا کا کلام آپ کے لیے سپر نیچرل طور پر آپ کی پروویژن کی وجہ بنتا ہے. نمبر 1 سیکنڈ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہے بلیونگ گاڈز ورڈ. او ہاللویا. رومیو کے خط اس کے پہلے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے, بس
कलाम बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम को। तो जितना ज्यादा आप खुदा के कलाम को सुनते हैं उतना ही ज्यादा वो आपके अंदर, दैट डजंट मीन कि आप खुदा के कलाम को स्टडी ना करें। जितना ज्यादा आप सुने, जितना ज्यादा आप स्टडी करें, उतना ही ज्यादा खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों के लिए बेनिफिशियल होता है, प्रिविलेजेस लेकर आता है। ना अभी आपने इब्रानियों के खत उसके 4 बाब की 2 आयत में पढ़ा है, वहां पर लिखा है कि सुने हुए कलाम ने उनको कुछ फायदा ना दिया, और पॉल ने फिर उसकी वजह बताई, और वजह क्या थी? इट वाज नॉट मिक्स्ड विद फेथ। एक और ट्रांसलेशन में लिखा है क्योंकि उसके लिए, खुदा के कलाम के लिए उनके अंदर ईमान ना था। ईमान आपकी जिंदगियों के अंदर डिटरमिन करता है कि कितना ज्यादा आप खुदा को खुश करते हैं। नो हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6 में लिखा है, एंड विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। इन अदर वर्ड, खुदा के कलाम को सुने के बगैर, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लिए बगैर आप खुदा को खुश नहीं कर सकते। खुदा का कलाम ही है जो आपके अंदर ईमान को बढ़ाता है खुदा के लिए, और ईमान वो रिक्वायरमेंट है जो आपको डिटरमिन करती है, पोजीशन करती है कि आप खुदा से खुदा की ब्लेसिंग्स को ले सके। 2 तरह की ब्लेसिंग्स का जिक्र अभी मैं करना चाहता हूं, और लास्ट जो बात मैं कहना चाहता हूं है कीपिंग गॉड्स वर्ड। ओ हालेलुया। ज़बूर 119 में क्या लिखा है? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में, और उसकी 105वीं आयत में गालिबन, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिए। सिर्फ अपने दिमाग में नहीं जहां पर मैं गौर करता हूं, सिर्फ अपने मुंह में नहीं जहां पर मैं कलाम को बोलता हूं, बल्कि अपने दिल में तेरे कलाम को रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इन अदर वर्ड, जब जो गुनाह है वो खुदा की नाफरमानी है। कई बार हम जो वर्ड सिन है उसको बड़ा खौफनाक समझते हैं। मुझसे गुनाह हो गया। गुनाह है क्या? डिसोबीडियंस ऑफ गॉड। खुदा की डिसोबीडियंस क्या है? जब आप और मैं खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में जुटला देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, तो ईमान हमारी जिंदगियों के अंदर जो अगर नहीं है तो इसका मतलब है हम खुदा की नाफरमानी में हैं, हम गुनाह में हैं। तो खुदा के लिए हमारे अंदर ईमान होना बहुत ज्यादा जरूरी। और ईमान हमारे अंदर कैसे है? खुदा का कलाम जितना ज्यादा हमारे अंदर है उतना ही ज्यादा हमारे अंदर खुदा के लिए ईमान है। नो मेरी बहन और भाइयों, 2 तरह की ब्लेसिंग, उसके बाद हम दुआ करेंगे। नंबर 1, वो ब्लेसिंग्स जो आप खुदा से मांगते हैं, खुदा आपको देता है। कलाम में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। नो, जो कुछ हम मांगते हैं खुदा हमें देता है। याकूब के खत में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओ ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। इन अदर वर्ड, खुदा उनकी ये मर्जी है, खुदा उनकी ये ख्वाहिश है कि आप खुदा से मांगे, दिलेरी से मांगे, दिलेरी से मांगे। जब आप उसके तख्त में आते हैं, वन ऑफ द पर्पस ऑफ खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा से मांगने के लिए आते हैं। खुदा, हमारी प्रॉब्लम है, हमारी मुश्किल है, हमारी तकलीफ है, हमारी बीमारी है, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है। और अभी मैं दुआ करूंगा खासतौर पर वो लोग, मेरे दिल पर आज सुबह जब मैं दुआ कर रहा था, मेरे दिल पर आया कि उन लोगों के लिए जो बिजनेस में नाकाम हो रहे हैं, या वो लोग जो बिजनेस में नहीं है, मैं उनके लिए दुआ करूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आप मांग रहे हैं खुदा आपको देगा, खुदा आपको देना चाहता है। नंबर 2, सेकंड ब्लेसिंग जो खुदा आपको देना चाहता है, दूसरी टाइप की, वो है वो ब्लेसिंग्स जो हेवनली रैम में है। 9 कुरिन्थियों के खत में उसके 2 बाब की 4 आयत में लिखा है, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। इन अदर वर्ड, स्पिरिट रैम में खुदा ने मेरे और आपके लिए अनसीन रैम में इनविजिबल ब्लेसिंग्स रखी हैं। वो ब्लेसिंग्स जो विजिबल नहीं है, जो हमें नजर नहीं आती। आप शायद कौन सी ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं? घर, गाड़ी, या शायद हो सकते हैं बिजनेस में इंक्रीज। लेकिन खुदा ने इससे बढ़कर ब्लेसिंग्स आपके लिए रखी हैं, और उन ब्लेसिंग्स को जो इनविजिबल रैम में है, अनसीन रैम में है, खुदा आपकी जिंदगियों में जारी करना चाहता है। किन के लिए खुदा जारी करना चाहता है? उन लोगों के लिए जो खुदा से प्यार करते। लिखा है खुदा ने उन लोगों के लिए उन ब्लेसिंग्स से याद कर रखा है, खुदा अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और वन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ लव क्या है? कि आप खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें। और खुदा की मर्जी को किस तरह से आप पूरा कर सकते हैं? खुदा के कलाम को अपने अंदर रखने के जरिए से। तो मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, जो भी इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, खुदा का मंसूबा
खुदा का प्लान, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप दुबई में हो, चाहे आप यूरोप के किसी हिस्से में हो, चाहे आप अफ्रीका या इवन मिडिल ईस्ट के किसी हिस्से में हो, जहां पर भी आप हैं, खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों के लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिट्स लेकर आता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत से बेनिफिट्स का जिक्र कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं सिर्फ ये कहकर कि खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर जाएं, उसको पढ़ें, उसको स्टडी करें और उसको ईमान के साथ अपने दिल में रखें, तो फिर देखें कि किस तौर से इन प्रिविलेजेस का जिनका जिक्र मैंने किया है वो आपकी जिंदगियों में खुदाउन ब्लेसिंग्स के तौर पर मैनिफेस्टेट करेगा। खुदाउन आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदाउन का हाथ आपकी जिंदगियों पर हो। आमीन। Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Silas, for this powerful message. और ये जैसे होता है ना जी, ये एक टाइटल है जो अभी आपने देखा, ये स्टार्टर है सिर्फ। और अभी जो अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, यकीनन आप बरकत पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ती है, Amen. टाइम देना पड़ता है। टाइम इज योर कमोडिटी। ये बड़ा जरूरी है, अपने वक्त को अच्छी चीजों के लिए सर्व करें। अगर आप कहीं और जगह कमिटेड नहीं हैं तो मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि आप संडे को हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च में आइए। एड्रेस है 309 विक्रेट फार्म रोड, हेस्टन TW50DR। तो अगर आपको मुश्किल पेश आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 00447718992824। मैं पर्सन जी सोचता हूँ कि जब खुदा यीशु मसीह कलाम पेश करते थे, जब वो तालीम देते थे, तो इतनी बड़ी भीड़, आप देखें जब वो हम यूहन्ना के छठे बाब को देखते हैं तो एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो उनके पीछे थी। तो खुदा यीशु मसीह ने उन पर निगाह की, उनको तरस आया उन पर, Amen. और यार ये तो ऐसे लोग हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है, ये ऐसी भीड़ें हैं। तो बहनों भाइयों, हम तो खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन हमारा चौपान है, वो हमारा सरदार दलाबान है। तो खुदावन अपने खादमों को लाता है कि वो आप तक खुदा का पाक कलाम पहुंचाए। तो क्या ही खुशनुमा है वो कदम जो अच्छी चीजों की बिशारत देते हैं। अब आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ ये है कि आप बाकी जो आपके काम है उनको छोड़ के आप आए खुदा के कलाम और खुदा का कलाम सुने। जितनी भी स्टर्बननेस है, जितनी भी वो बातें हैं ना कि अच्छा जी नहीं मैंने उधर जाना था जी, वो मेरे लिए प्रायोरिटी अपनी सेट करें कि नहीं यार ये टाइम जो है ना मैंने खुदा को देना है, मैंने खुदा के घर में जाना है। और अगर आपके अंदर ये ख्वाहिश नहीं है कलाम को सुनने की, अगर आप तलाशी नहीं है ना, इफ यू आर नॉट अ गुड सीकर, तो सीख जो स्कूबा डाइवर्स हो गए तो क्या करते हैं, जो जाते हैं ना पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, उनको स्कूबा डाइवर्स कहते हैं। वो गहराई में चले जाते हैं, वो मोती लेकर आते हैं। तो जो बाहर खड़े रहते हैं समुद्र के एंजॉय करते रहते हैं। पिछले दिनों मैं गया जी सी साइड पे, तो मुझे तो खैर वो स्विमिंग नहीं आती, तो मैं बस इतने जाता था जितना मुझे पता था कि मैं बच जाऊंगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जैसे जो कि बाहर सी साइड पे खड़े रहते हैं, दूसरों को देते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, लेकिन मोती वो लेकर आते हैं जो बीच में चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं। Absolutely. तो अजीजों, अगर आप रिस्क टेकर नहीं है, अगर आप इस धूप को बर्दाश्त नहीं कर रहे, अगर आप ट्रेवल नहीं करना चाहते, हाँ अगर कोई दोस्त बुलाए, कोई जाना है कहीं पार्टी तो हम चले जाते हैं, बट इफ यू आर नॉट जेन्युइन सीकर, मतलाशी होना। देखिए कुछ लोग आए और यूनानी थे, तो उन्होंने आकर कहा जनाब हम यीशु को मिलना चाहते हैं। तो फिलिप्पस ने उनको यीशु से मुतारफ करवाया, खुद भी आए, अपने दोस्तों को भी लाए, ताकि वो खुदा का पाक कलाम जो है वो सीख सकें। हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं जी, उनको मैं पढ़ना चाहता हूँ। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हैं हमारे दोस्तों की जो कि मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस होती हैं। पादी गिलबर्ट साहब ने बड़ी खूबसूरत लिखा, ब्यूटीफुल ब्लेस्ड एंड पावरफुल मैसेज, द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड अलाइव, एक्टिव एंड रिस्टोर्स एंड रिफ्रेशेस। थैंक यू वेरी मच। और जिशान ने लिखा जी, और से ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड मैसेज, थैंक यू जिशान। अरुण साहब लिखते हैं जी, थैंक यू Reverend Silas and Reverend Noble, the powerful teaching on the five privilege of God. Your message was a great blessing and timely reminder of the privileges and goodness we have in Christ. May God continue to strengthen, guide, and use your mightily for His glory. God bless you. और मैं जनाब सिलास साहब से कहना चाहता हूँ कि ये हमारे चर्च के जो हमारी टीम है, जिसमें मैंने बताया कि चर्च एल्डर और सेक्रेटरी भी हैं, तो जब मैंने इनसे बात की तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, एल्डर साहबान हैं, बड़ी खुशी के साथ, इवन इट वाज अ शॉर्ट नोटिस, लेकिन उन्होंने आपको दावत दी है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी इस टीम के लिए। नई मैसेज सब भी हमारे बड़े अच्छे कंट्रीब्यूटर हैं, खुदा के खादम हैं। Pastor Silas and Pastor Noble, God use you to refresh my soul. I thank you and all the glory to our Heavenly Father. God bless you more. Continue to use your
to build and strengthen the kingdom of God. Blessing. Thank you very much. हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं जी, गॉस्पेल सिंगर हैं नासिर भट्टी साहब, मेरे लिए तो बड़े भाई उनकी तरह हैं। तो उन्होंने वक्त निकाला है, उनके बड़े खूबसूरत गीत भी हमको प्ले करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जरूर अगर टाइम हो तो भट्टी साहब आप आइएगा और हमें गीतों के जरिए हमें जो है ना जरूर आप ब्लेस कीजिएगा। तो ये तमाम दोस्त हैं, इनके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। जो क्वेश्चन मैंने किया था कि कलाम ने किस तरीके से आपको जिंदगी बसर किया है, तो मैसेज सब लिखते हैं। Word of God tells me about the personality of God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit, and help me to shape my life according to His will. Thank you, बहुत शुक्रिया जी आपका। तो ये जनाब देखिए कमेंट्स आते जा रहे हैं, लेकिन दुआ जो है ना करनी बड़ा जरूरी है पास्टर जी, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे बहन भी जो नॉन क्रिश्चियन हैं और जो क्रिश्चियन हैं, दे आर गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई बीमार हैं, कुछ लोग जो हैं वो जैसे आपने फरमाया कि उनके बिजनेस के इश्यूज हैं, देयर सो मेनी चैलेंजेस। अभी जो हालात चल रहे हैं, जो बिजनेस पीपल हैं बड़े परेशान हैं, क्योंकि बड़ी इंस्टेबिलिटी है इकोनॉमी की। और मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए जरूर दुआ करें कि गॉड पुट दैट इन योर हार्ट। और जो हमारे नौजवान बेटे बेटियां हैं, दोज हु आर गेटिंग इन्वॉल्वड इन दैट डिफरेंट काइंड ऑफ द इमोरलिटी और ड्रग के प्रॉब्लम में हैं, आप उनके लिए दुआ कीजिए, तमाम खानदानों के लिए। और जो संडे की सर्विस है खासतौर पर उसके लिए दुआ कीजिए कि खुदावन चर्च काम करे और खुदावन अपने लोगों को लाए और वहाँ पर मिरेकल्स हों और खुदावन जो है अपना काम करे। हमारे चर्च के लिए खासतौर पर दुआ कीजिएगा। तो जी ओवर टू यू, आप दुआ में Amen. So आइए हम सब खुदाम के हुजूर दुआ करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब दो लोग किसी बात के लिए, मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, जब दो लोग मिलकर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें तो वो आसमान पर हो जाती है। और मैं आप तमाम अजीजों के लिए जो इस वक्त किसी भी तरह की नीड में है, मैं आपके साथ उस लॉ ऑफ एन एग्रीमेंट को फुलफिल करता हूं, जिसके मुताबिक जब हम मिलकर खुदावंद से मांगेंगे तो आसमान पर वो हो जाएगा। जो कुछ आसमान पर होता है उसकी मैनिफेस्टेशन जमीन पर होती है। बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम में एक बार फिर तेरे तख्त के सामने आते हैं, इस बोल्डनेस के साथ कि तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इस इंकरेजमेंट के साथ कि तूने कहा है दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। सो हम मांगते हैं खुदावंद। अरे बाप, खास तौर पर सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूं जो है खुदावंद अपने बिजनेस को लेकर परेशान है। अरे बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने उन्हें बिजनेस दिया, पर अरे खुदावंद इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं उसकी वजह से शायद उनका बिजनेस उस तौर से रन नहीं कर रहा जिस तौर से वो रन करना चाहिए था। सो खुदावंद मैं ये दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, तूने ये कॉन्फिडेंस दे कि अगर वो तुझ में कायम रहे और तेरा कलाम उनके दिल में कायम रहे तो जो चाहे मांगे, चाहे वो बिजनेस की बढ़ोतरी मांगे, चाहे वो नया बिजनेस मांगे, खुदावंद तू उन्हें देगा। सो खुदावंद मैं बिजनेस के लिए दुआ करता हूं, खुदावंद मैं अनकॉमन आइडियाज के लिए दुआ करता हूं, बिजनेस आइडियाज के तेरे लोगों के लिए। सो खुदावंद यीशु के नाम में तो अपनी डिवाइन फेवर को जारी कर अपने लोगों के लिए। वो लोग जो अपनी जॉब पर अपनी रेज के लिए परेशान है, प्रमोशन के लिए परेशान है, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। खुदाम तो उनके लिए भी पॉसिबल कर। मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूं जो है खुदाम इस लेजिटिमेट एक्सक्यूज में है कि संडे को उन्हें अपनी जॉब की वजह से छुट्टी नहीं मिलती और वो खुदाम तेरे घर में नहीं आ सकते। बाप, यीशु के नाम में उनकी इस इवन लेजिटिमेट, चाहे ये कितनी ही लेजिटिमेट एक्सक्यूज है, बाप इस एक्सक्यूज को उनका खत्म कर, उनके लिए मुमकिन करके वो मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे जॉब कर सके, ताकि खुदाम वो तेरे घर में आ सके संडे को और वो तेरी आवाज को अपनी जिंदगी में ले सके, वो ऐ खुदाम तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा कर सके। कि हम शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में और हम करते हुए तेरी बारगाहों में दाखिल हों। खुदाम मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूं जो बीमार हैं, जैसे तेरे कलाम में ज़बूर 107 और उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि तू अपना कलाम नाजिल फरमा कर उन्हें शिफा देते। हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी तेरे बेटे यीशु के नाम में जाती रहे। खुदाम मैं तेरे बेटे यीशु के ब्लड को उनके अंदर इंजेक्ट करता हूं और तेरे बेटे यीशु का ब्लड उनके अंदर से हर तरह की बीमारी को, हर तरह की कमजोरी को, हर तरह की कॉम्प्लिकेशंस को मुकम्मल तौर पर खत्म करे। खुदाउन बाप, हम सुनना चाहते हैं, इवन मैं ये दुआ करता हूं खुदाउन पास नोएल के लिए कि वो टेस्टिमनीज रिसीव करें सुपरनैचुरल हीलिंग की, और तेरे लोग खुदाउन उन्हें लिखकर बता सकें
کہ جو کچھ وہ پہلے نہیں کر سکتے تھے وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں خدا. اگر کچھ لوگ ہاسپٹل میں ہماری آواز کو سن رہے ہیں باپ یسوع کے نام میں تو ان کے بیماری کے بستر کو شفا کے بستر میں تبدیل کر دے اور خدا تیرے نام کی شکر گزاری ان کے اندر قائم ہو سکے. ارے باپ میں نوجوان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں خدا جس ملک میں بھی وہ اس وقت ہے اگر وہ کسی طرح کی ایڈکشن میں ہے خدا تو ان کی ایڈکشن کا خاتمہ کر. اگر وہ کسی طرح کی بھی اسموکنگ کی یا ڈرنکنگ کی پرابلم میں ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ چھوڑنا چاہتے لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتے باپ یسوع کے نام میں اسپرٹ آف ڈٹرمینیشن ان کے لیے مانگتا ہوں کہ خدا وہ ارادہ کریں اور اس کی وجہ سے خدا وہ ٹوٹلی طور پر آزاد ہو جائیں. یس خدا ٹوٹل فریڈم پرماننٹ فریڈم ان کے لیے مانگتا ہوں خدا. اور باپ اس کے ذریعے سے ہم تیرے بچوں کی زندگی میں بھی تیرے پاک نام کی گواہیاں سننا چاہتے ہیں خدا. ہم سنڈے کی سروس کے لیے ابھی سے دعا کرتے ہیں خدا ان لوگوں کو جنہوں نے پلان نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ آ سکیں خدا یسوع کے نام میں وہ اپنی پرائیورٹیز کو چینج کریں. اور اے خدا تو نے فضل دے کہ فوکسڈ ہو یسوع مسیح کے نام میں کہ وہ تیرے گھر میں آ سکے اور خدا وہ تیری آواز کو سن سکیں. اور اے باپ وہ تیرے کلام کو سننے کی وجہ سے تیرے ان پریولیجز کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر سکے ریفریشنگ کے طور پر ریسٹوریشن کے طور پر سکسیس کے طور پر ہیلنگ کے طور پر. او خدا تیرے ہاتھ کو ان کی زندگیوں پر مانگتا ہوں. اے خدا تیرے خادم کے لیے بھی ان کے گرانے کے لیے بھی بلیسنگ کی دعا کرتا ہوں. تیرا شکر ہو خدا اس گلوبل ویژن کے لیے جو تو نے اپنے خادم کو دے رکھی ہے اور میں دعا کرتا ہوں سپر نیچرل پروویژن اس کے لیے خدا اور زیادہ اپنے خادم کو دے تاکہ خدا اس پروویژن کی وجہ سے گلوبل نیڈ جو خدا تیرے کلام کی ہے لوگوں تک پہنچنے کی وہ پوری ہوتی چلی جائے. اور اس کے ذریعے سے خدا تیری کنگڈم خدا تیرے خادم کے ذریعے سے ان کی منسٹری کے ذریعے سے ان کی لیڈرشپ کے ذریعے سے ایکسپینڈ ہوتی چلی جائے ایکسٹینڈ ہوتی چلی جائے اس زمین پر. اور خدا جس سے بہت سے لوگ تیری بادشاہت کا حصہ بن سکیں. تیرے بیٹے یسوع کے نام میں یہ بلیسنگز مانگتے ہیں. آمین آمین. ہم سب مل کر خدا کی سکھائی دعا میں شامل ہیں. آئے ہمارے باپ جو آسمان ہے تیرا نام پاک نہ تیری بادشاہ تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین ہمارے روز سے پیار بخش اپنے کرداروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے میں آزمائش میں نہ کرنا تو برائی سے بچائے کیونکہ بادشاہ قدرت کو جلا ہمیشہ کرے. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک.